Okay student, now I am explaining you review exercise IUPAC nomenclature. Through that all the concept will be clear of yours. First IUPAC nomenclature, that first question, the CH3 CH double bond CH CH3 and here on this carbon CH3. Now this, so first as we learn in 10th standard that like all the carbon, this is the main chain, so first carbon will here. Now here double bond is given, which means the one functional group is present in this. This is double bond also of a functional group. Alkene, alkyne, all of them are functional group. So the double bond present in it, which means we have to give this double bond a minimum number, and also the branch also given. So that branch also we have to give a minimum number. If we start from here 1 2 3 4, so it will give to third number. But if we start from here 1 2 and 3, so it will be second number. And if we start from here also, then this is the second number, and start from here, then it is second number. So better that we start from here. So 1 2 3 and 4. Okay, so and first we will find out that on which number this methyl group is present. Okay, so it is present on third number. Okay, so third number, second number, sorry, 2 methyl, it is, got it, it is a second number 2 methyl. Now the second number have a ene, it is ene also, 2 ethyl, 2 ene, got it. So and the fourth, which means that but, 4, which means that it is but. So now we'll arrange all of this, we arrange all of this, then how we will find out that 1 2 3 4. So the but, or according to this methyl will come first. So 2 methyl. Why we are not taking in last? Because it is functional group, so it will come afterward the main chain. So 2 methyl, 2 methyl but 2 ene. Okay, 2 methyl but 2 ene, it is. Answer will be like this. In your textbook it is given wrong answer according to this, that in your textbook it is given 4 methyl pent 2 ene. How it is 4 methyl pent? It is not pentene, there are 4 carbon are there. So it is, this one is a correct answer, you just correct it. Okay, now the second will be a CH triple bond C CH3 C2H5 CH2 CH double bond CH2. So now we have to find out the longest chain. If we find out first the longest chain, then here also 2 carbon and here also 2 carbon, but here triple bond, double bond, and everything is given on the chain, and so we can consider this is as a sub chain. Okay, so this is also in this side methyl group, this is side also a 2 carbon, so we consider this is the main chain, longest chain. Okay, now we give the numbering, which means according to we give that double bond we give as a priority, first principal functional group. So we have to give them a list number, we have to give them a list number. So this, that's why this is the first carbon, this is second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, so let's go. So first that it is 6, so hex, 6 carbon, which means hex. Okay, that is the word root. Then first principal functional group, so 1 ene, then 5 ine or 4 ethyl, this one, and also 4 methyl. Now arrange, now we'll arrange. See this this double bond और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन रिंग मेन चेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको इसके जो इसका वर्ड रूट है उसी के अंदर इसका नाम, ये बोथ वी विल इंक्लूड इन इट. ओके, सो दैट्स वाई पहले अभी देखें ये दोनों में पहले कौन आएगा, तो ई विल कम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल. सो द 4 ethyl dash 4 methyl hex
Okay, now hex you can write, and then 1 in 5 आइन। और यहाँ पे मिसअंडरस्टूड नहीं होना है कि क्यों मैंने 5 आइन बाद में लिखा, वो तो मेन है, बट ये चेन के साथ यहाँ पे ये जुड़ रहा है। हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है जो हमने दिया, उससे ही ये डिसाइड हो जाता है कि ये हमने कंसीडर किया मेन फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर, इसलिए हेक्स 1 in 5 आइन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो दिस इज सेकेंड। नाउ third one is given, very lengthy one, that is a CH3 CH3 C2H5 CH double bond CH, then CH double bond CH CH3 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 ऐसे दिया है। ओके, नाउ हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है, सो वी कैन टेक दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, बिकॉज यहाँ पे ये C2H5 है, विच मीन CS2CH3 आएगा ये। ओके, सो वी फर्स्ट यू हैव टू सी दिस इज द 2 methyl group both the side, so we do this. Okay, now here the 2 functional group both had a double bond, double bond है, तो अभी उसको लीस्ट नंबर देना है। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो द 1 2 3 4 5 6 7 5 ओके 5 यहाँ पे, सो 1 2 3 4 एंड 5 5 और 6, सो द 4 5 आया, 4 and 5. Now if we start from here 1 2 3 4 5, so यहाँ पे ये आया 3 and 5, so we will decide कि ये दोनों है तो इसको लीस्ट नंबर मिल रहा है 3rd और 5, so we will start from this side, so 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 2 है ना, so 9 है, तो वर्ल्ड रूट हुई नॉन-एन। ओके, नॉन एन। फिर उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, ब्रांच देख लो, 7 नंबर पे ब्रांच है। ओके, सेकेंड नंबर पे भी ब्रांच है, सेकेंड नंबर पे 2 है, सो 2 2 हुआ। फिर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, सो 7 7, ये नॉन-एन हो गया, ये 2 2 7 7, फिर टेट्रा मिथाइल, ये हो गया, गॉट इट। अभी यहाँ पे ये 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5th नंबर पे, सो 3 5 डाई इन, ठीक है, ऐसे जाएगा। सो व्हाट विल बी द नेम, अभी ये पहले रहेगा 2 2 7 7 टेट्रा मिथाइल, देन नोना 3 5 डाई इन, ऐसे लिखा जाता है। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लेट्स टेक अनदर वन, 4th one, that is a CH2 double bond CH CH3 CH2 CH double bond CH2 और यहाँ पे CH3 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 CH3। ओके, सो इस तरीके का है। सो अभी देखो यू कैन सी दैट ये तो चेन है, ऊपर से ब्रांच है और ब्रांच का भी सब ब्रांच है। ओके, सो हम लोग पहले ये जो है इसको पहले नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद ये अभी पहले तो ये देखो किसका नेमिंग करना पड़ेगा, सॉरी नॉट दिस वन, पहले यू हैव टू फाइंड आउट द चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, so I think this is the longest chain, not ये this is the longest chain. okay, so which means कि अभी हमें ये चेन का नेमिंग करना है और यहाँ पे ये जो ब्रांच है वो, बट फंक्शनल ग्रुप इधर भी है, so what we will do here also the functional group, so we can give them name, how we will do, यहाँ पे नेमिंग करेंगे पहले, देखो okay, I'll do write another time, CH2 double bond CH CH3
CH2 CH double bond CH3 and here CH3 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 ऐसे। ओके, सो ये नॉन है। पहले तो ये हो गया कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है विच मीन्स कि यहाँ पे उसको ये लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये लेंगे ना। मैंने पहले जो बोला था बराबर है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है। अगर ब्रांच में हो सके तो फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया जाता, वो अगर चेन के अंदर है तो उसको ही कंसीडर करो, उसको ही मेन चेन कंसीडर करो, ना कि इसको। सो सबसे पहले अभी इसका नेमिंग करते हैं जो ब्रांच में है। सो 1 2 एंड 3 कार्बन आर देयर, 1 2 एंड 3। ओके, सो 3 कार्बन विच मीन्स द प्रोप, ये हुआ प्रॉप। ओके, सो प्रोपेन का हुआ, सो प्रोपाइल हो गया। देखो ब्रांच की ब्रांच होती है ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है पहली बात। तो पहले में हम लोग इसका ही नेमिंग करते हैं, तो प्रोप, ये तो प्रॉप है। नाउ 1 इसको कंसीडर यहाँ से किया जाता है 1 2 एंड 3, क्योंकि ये ब्रांच यहाँ से जुड़ी है इसीलिए यहाँ से नंबरिंग की जाती है 1 2 एंड 3, नॉट फ्रॉम हियर। सो 1 2 एंड 3, सो 1 के ऊपर 2 है, सो 1 1 डाई मिथाइल। ओके, ये पहले प्रॉप लिया, फिर ये 1 1 डाई मिथाइल आया और 2 के ऊपर इथाइल, 2 के ऊपर 2 मिथाइल। ओके, अभी इसका नाम करें, इसका नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखना है, इन ब्रैकेट 1 1 डाई मिथाइल, और दिस इज ऑल्सो 1 1 2 ट्राई मिथाइल, ये 1 1 2 ट्राई मिथाइल, 1 1 2 ट्राई मिथाइल, प्रोपाइल, प्रोपेन की जगह प्रोपाइल आएगा यहाँ पे, और ये एक हो गया इसका नाम, ये 2 मिथाइल, ये तीसरा 1 1 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया। अभी इसकी बात करें, सो नेम नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो भी सेम रहेगा, इधर से करेंगे क्योंकि ये ब्रांच एक है तो उसका लिस्ट नंबर होना चाहिए। सो 1 2 एंड 3, सो 3 मिथाइल एक और भी है यहाँ पे। ओके, 3 मिथाइल। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखोगे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1, इधर 1, और यहाँ पे भी 4 एंड 5 के ऊपर आई है, सो 1 5 डाई इन। ओके, अभी ये सबको जोड़ देंगे तो हेक्स है। नाउ वी कंबाइन ऑल दिस। देखो ब्रांच की ब्रांच है, मिस ये ब्रांच है यहाँ पे और उसकी भी ब्रांच है, तो उसमें जो ट्राई डाई टेट्रा होता है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। ब्रांच के अंदर डाई और ट्राई को नहीं किया जाता, बट ब्रांच की ब्रांच है विच मीन्स दैट ब्रांच हैव अनदर सब ब्रांच, देन डाई ट्राई उसको कंसीडर किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। गॉट इट? सो अभी इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टी को कंसीडर किया जाएगा, एम को कंसीडर किया जाएगा। सो अभी इसका पूरा नाम लिखेंगे। सो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट नेम डाइन तो है वो हेक्स के पीछे जाएगा, वो तो अभी पता चल गया, ठीक है। सो पहले एम आता है, सो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ये हुआ 3 मिथाइल, ठीक है। ये थर्ड 3 मिथाइल यहाँ पे लिखा। ओके, अभी हम नेम लिख रहे हैं 3 मिथाइल। नाउ दिस ब्रांच प्रेजेंट ऑन थर्ड नंबर कार्बन, सो विल राइट हियर डैश 3 देन डैश, ठीक है। देन इन ब्रैकेट 1 1 2 ट्राई डैश करके ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट इज ओवर। देन आएगा ये हेक्सा, देन 1 5, ओके। सो हेक्सा डैश 1 5 डाई इन, दिस इज द वे इट इज गिवन। ओके, उसका दूसरा एग्जाम्पल इसके जैसा ही है, वो देखेंगे तो तुम लोग को ये इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विल सी अनदर वन एग्जाम्पल सेम जस्ट लाइक दिस ऑल्सो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल,
CH3 C triple bond CH3 C2H5 CH2, देन C यहाँ पे है CH2 CH3, इसके नीचे यहाँ पे है CH3 CH3 and CH3 and here also CH3. ओके, नाउ यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन. सो लॉन्गेस्ट चेन हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे सीधी तरीके से लिखेंगे या तो फिर इसको ऐसे देखेंगे. देखो हम ऐसे करेंगे तो भी ये फंक्शनल ग्रुप तो ये चेन में आ ही रहा है. सो व्हाई वी आर थिंकिंग टू टेक दिस, वी विल थिंक दैट टेक लाइक दिस लॉन्गेस्ट चेन. ओके, सो लॉन्गेस्ट चेन में इसको प्रायोरिटी देनी है तो उसका लिस्ट नंबर होना चाहिए. सो वी विल कैलकुलेट सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9. सो मेन जो वर्ड रूट है उसको नोन आएगा इसका. ठीक है, सेकेंड नंबर के ऊपर आइन है. सो ये आइन फंक्शनल ग्रुप सेकेंड के ऊपर. अगर और फिर उसके बाद जो फोर्थ के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है, 6 के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है. सो द 4 6 डाई इथाइल, ये एक इथाइल है, ये एक इथाइल है. ठीक है, अभी मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, ये एक रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, और दिस इज फोर्थ वन. द टोटल 4 है मिथाइल ग्रुप. ठीक है, सो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन कौन से नंबर पे है देखो. फोर्थ नंबर पे 4 6 7 8 टेट्रा मिथाइल. ठीक है, ये 1 2 3 4. सो हो गया. अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टेट्रा इसमें नहीं गिना जाता. मिथाइल इथाइल विल कम फर्स्ट. सो क्या आएगा, और ये जाएगा इसके पीछे. सो 4 6 7 8 टेट्रा मिथाइल 4 6 डाई 4 6 डाई इथाइल 4 6 7 8 टेट्रा मिथाइल नॉन टू आइन, नॉना टू आइन, और नॉन भी लिखोगे तो भी चलेगा, नॉन टू आइन. ओके, सो दिस इज द वे यू कैन राइट. आई होप थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा सा देख लेना. ओके, सो इस तरीके से ब्रांच वाला भी देखती हूँ मैं. मुझे ब्रांच वाला अगर दूसरा ऐसे एग्जाम्पल मिल जाता है देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट ब्रांच ऑल्सो. ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वन है इंटरेस्टिंग, दिस वन CH3 CH C2H5 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 ऐसे. ठीक है, ये वाला है. नाउ हियर दिस इज द डबल बॉन्ड हियर, यहाँ पे है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक दिस, नॉट दिस, ये वी हैव टू टेक दिस इज द ब्रांच, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, बिकॉज यहाँ पे C2H5 है. तो 2 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7. ओके, और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल बी लीस्ट नंबर. सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके, सो थर्ड नंबर के ऊपर भी 3 नंबर के ऊपर इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल. 6 नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप है. एंड फर्स्ट and 4 have die-in and total number of 8 electron. So oct, क्या आएगा total number of 8 electron, it will be octa. So this diene will come afterward, but here ethyl and methyl में ethyl will come first. So 3 ethyl
6 methyl 1 4 6 methyl octa 1 4 diene. ओके, सो दिस इज द वे इट विल कम. सो आपको पहले पहचानना है कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन क्या लिखनी है. देखो यहाँ पे C2H5 लिखा हो तो पहले वो देख लो कि ये आता है, और ये फंक्शनल ग्रुप चेन में ही आना चाहिए. अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सब ब्रांच में उसको नहीं कंसीडर करना है. ठीक है, वो ऐसा वाला एग्जाम्पल आएगा ही नहीं जिसमें सब ब्रांच होगा और इसको. सो ये इस तरीके से कंसीडर करना है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल विल टेक, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट वे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. ये CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस ऐसे दिया हुआ है. देखो इसको बहुत कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है. सो पहले इसको खोल देते हैं. कैसे खोलेंगे, यहाँ पे कार्बन के ऊपर ये एक CH3 इधर है और ये CH3 इधर है. डबल बॉन्ड CH, then CH2 CH double bond C, here also CH3 and here also CH3 because it is written C2 times. Okay, now we find out that this is the longest chain और ये भी सब ये branch हो गया. Now we'll give the numbering from this side or this side. Both the side we will get the same number. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so we'll get that 2 and 6 have a dimethyl. easy. आपको बस खोलना है, यू विल एबल टू फाइंड आउट कि कैसे हो गया. ठीक है, नाउ 2 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड 5 नंबर के ऊपर. सो 2 5 डाई इन, गॉट इट. एंड द टोटल नंबर 7. सो द हेप्ट, so this will come afterward. So we'll start from here. The name will be that a 2,6 dimethyl hept 2,5 diene. This will be the name. Okay, I think you are getting me. अच्छे से समझ में आ रहा है तुम लोग को. और उसके बाद वाला बहुत अच्छा है. नेक्स्ट 8th one, it is CH3 CH C2H5 double bond CH double bond not double bond, it is CH C2H5 CH3 C C2H5 H C triple bond C CH2 C triple bond C C2H5 and CH3. It is here but I am writing here. ओके, ऐसे दिया है. नाउ विच वन इज द लॉन्गेस्ट चेन. देखो यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है. सो विच मीन्स दैट दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन. यहाँ से 2 कार्बन, इसको खोल देते हैं. तो खोल के कैसे लिख सकते हैं हम, CH3 ऐसे, मैं छोटे हैंड राइटिंग निकालती हूँ. CH2 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C C और ये वाला C. ठीक है, और यहाँ पे ये एक है CH3 ग्रुप और ये आ जाएगा CH2 CH3 जो ये वाला है, वो ये मैंने यहाँ पे लिखा. ठीक है, नाउ विल गिव द नेम नंबरिंग. सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. It is 11. Okay, और इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस साइड, तो ये साइड से स्टार्ट करेंगे तो भी यहाँ पे ये नंबरिंग आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो सेम नंबरिंग आती है. तो पहले फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं. हम स्टार्ट करते हैं इधर से, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3. सो थर्ड कार्बन के ऊपर ब्रांच है 3 और यहाँ पे 9 कार्बन के ऊपर भी है मिथाइल ग्रुप. सो 3 9 डाई मिथाइल. ठीक है, पहले ये आया. अभी फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो 4 नंबर के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज 4 नंबर 1 2 3 4. 4 नंबर के ऊपर 5 6 7. ओके, डाई आइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो दिट्स वाई आइन.
ओके, ये हो गया. ओके, नाउ द टोटल 11. सो 11 के लिए क्या लिखा जाता है ज़्यादातर? डेका. 11 के लिए डेका. ओके, फॉर 11 डेका. So now 4 7, so it will come afterward. So what it will be? 3 9. What is the name? 3,9 dimethyl. 3,9 dimethyl. Then deca. Deca 4 7 diene. It will become डेका. डेका नहीं, अनडेका आएगा शायद 11 के लिए. एक मिनट, अभी मैंने आपको टेक्स्ट बुक में देखा है. इट इज डेका. डेका 11 के लिए अनडेका इट इज. सो इट विल कम अनडेका हियर. UN अनडेका. सो हियर डेका 4 7 9. ओके, सो ये इधर हो गया इस तरीके से. नाउ आई होप कि यहाँ तक ये समझ में आया. दूसरे दो इजी है. 10 नंबर का करते हैं. 10 नंबर का थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है. CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH2 CH3 like this it is given. Don't misunderstand this thing. This is the branch. This is the chain because double bond you have to take in a main chain. Okay, so ये branch है. So उसको अच्छे से खोल के रखो. तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 इधर आएगा और देन CH डबल बॉन्ड CH and CH3 डबल बॉन्ड CH2. Now it will be easy. You can put number, just both the side equal number will come. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. So 1 3 5 tri-ene and 2 5 dimethyl and total 6 hex. Total 6 hexa. So what it will become? 2 5 dimethyl hexa 2 5 2 1 2 1 3 5 tri-ene. It will become. Okay, it is easy. So ये सारे ऐसे थे जिसमें ऐसे है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अभी फंक्शनल ग्रुप वाले देखते हैं. सो फंक्शनल ग्रुप वाले में कैसा होता है? सो इन फंक्शनल ग्रुप सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2OH. ना ये फंक्शनल ग्रुप दिया. प्रायोरिटी के हिसाब से अल्कोहल विल कम फर्स्ट देन दिस. ओके, सो व्हाट द नेम इट विल बी कम. सो लेट्स सी दैट. फर्स्ट तो देखो लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गई क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है. सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. देखो सेकेंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप है. सो 2 मिथाइल. सेकेंड ग्रुप के ऊपर मिथाइल ग्रुप है. सो 2 मिथाइल इट इज. देन सेकेंड ग्रुप के ऊपर डबल बॉन्ड भी है. सो 2 इन एंड अल्कोहल है. सो अल्कोहल फॉर दैट वी आर राइटिंग ऑल अल्कोहल के लिए. ओके, सो 1 ऑल एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4 ब्यूट. Okay, let's arrange now. So what it will become? 2 methyl but 2 methyl but और this 2 in we have to take in because it is in a chain. So डबल बॉन्ड भी आप इसको बाद में नहीं लिख सकते ना पहले लिख सकते. उसको चेन ब्यूटेन वाली चेन में ही जाएगा. So ब्यूट 2 in 1 ऑल ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर you can take. Got it? So all will become last. So this is the way you will answer. Now another one, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. that is a CH3C CH2COOH and CH3 and CH2COOH.
देखो ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोला है। देखो COOH ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है कि जो टर्मिनल होता है। टर्मिनल क्या बोलते हैं, जो एंड होते हैं, जो चेन होती है उसके एंड में होता है, दो एंड में। सपोज ये लंबी चेन है तो ये टर्मिनल हो गया और ये टर्मिनल हो गया, बिटवीन सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ये टर्मिनल है। हम इसको खोल देते हैं, मैं क्या बताती हूँ कैसे खोलते हैं। HOOC ये वाला, देन CH2, देन C, ये कार्बन के ऊपर एक ऊपर CH3 एक नीचे CH3, ठीक है, और ये CH2 COOH, ठीक है। अब यहाँ यू कैन फाइंड आउट दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। सो ये 1 2 3 4 5 carbon which means pent, 5 carbon which means pentane, right? Now 2 on, so on 2 carbon that is carboxylic acid, so 1 5 1 5 1 5 dioic acid, okay, 1 5 dioic acid, and on third carbon there are 2 methyl group present, so you can add that, or 3 3 dimethyl. So what the name will come? The name will come 3 3 dimethyl pent 1 5 dioic acid. 3 3 dimethyl pent 1 5 dioic acid. Or pentane also you can write pent, penta you can write pent, also you can write pentane, पूरा भी लिख सकते हो आप. So that will you can do. Okay. So ये एक फंक्शनल ग्रुप का हो गया ऐसे. अभी दूसरे ऐसे दूसरे तरीके से फंक्शनल ग्रुप है. चलो ये वाला थोड़ा ये वाला करते हैं हम. दिस थिंग वी विल डू, दैट इज अ CH3 CHNO2 C, ऐसे लिखा है Cl CH CH3 CH2 CHO. ओके देखो ये सबसे पहले. सो प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे एल्डिहाइड विल कम फर्स्ट. देखोगे आप 12.12 ग्रुप 12.12 टेबल देखोगे तो एल्डिहाइड पहले आएगा, फिर नाइट्रो ग्रुप आएगा और फिर हेलोजन. और ये तो रिंग है, ये सबसे लास्ट में जाता है. ये रिंग है, दिस इज रिंग. किसकी रिंग है? साइकिल है, रिंग साइकिल है, और जिसमें 3 कार्बन है. ओके सो 3 कार्बन अगर होता है तो साइक्लो लिखा जाता है. ओके और जब साइक्लो होता है तो उसमें कौन सा साइक्लो है? ये यहाँ पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर 3 मिथाइल, यहाँ पे 3 मिथाइल, 1 सेकेंड, साइक्लोप्रोपाइल 3 कार्बन है ना, साइक्लोप्रोपाइल आएगा ये. ओके चलो तो पहले नेमिंग करते हैं. दिस इज द एल्डिहाइड, ये पहला है. सो फर्स्ट गिव द नेम ऑफ द नंबरिंग. ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. ओके अभी ब्रांच देखते हैं. थर्ड के ऊपर मिथाइल है, सो 3 मिथाइल इट विल कम 3 मिथाइल. देन फिफ्थ के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, सो 5 नाइट्रो. 4 के ऊपर क्लोरो है तो 4 क्लोरो. ओके and then fourth के ऊपर this is also this is triangle which means 3 carbon. ये रिंग है ऐसी CH2 सॉरी CH CH2 CH2 ऐसे रिंग है. so ये 3 कार्बन है which means द प्रोपेन है और साइकिल बना रहे हैं तो साइक्लोप्रोपेन. so साइक्लोप्रोपेन, it is cyclopropane. So now what? Now we are total 6. So hex. So hexa. Now we'll arrange all of this in alphabetical order. So what it will become here? 3 पहले तो alphabetical order में 3 methyl ये जाएगा या क्लोरो जाएगा. C पहले जाएगा राइट, पहले C जाएगा फिर ये C जाएगा. So 4 क्लोरो 4 साइक्लोप्रोपेन 4 साइक्लोप्रोपेन और प्रोपाइल, सॉरी नॉट प्रोपेन, प्रोपाइल एक कार्बन कम हो गया है यहाँ पे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन कम हो गया. सो प्रोपाइल
propyl, 4 propyl, and then nitro will come first, then this, so 4 chloro, 4 cyclopropyl, then 3 methyl, then 3 methyl, 5 nitro, then हेक्सा, और यहाँ पे ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के लिए क्या जाएगा अल, ओके, और हेक्सेनल, सो 5 नाइट्रो हेक्सा 1 अल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये किया जाता है 5 नाइट्रो हेक्सा अल, क्योंकि एम पहले आता है फिर एन आता है, 5 नाइट्रो हेक्सा अल 1 अल, और हेक्सेन भी लिख सकते हो, पूरा हेक्सेन भी यू कैन राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे ये रिंग है तो ये 4th नंबर पे है इस तरीके से। अगर नहीं समझ में आता आज तो कल मुझे वापस पूछना, आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, ओके। सो ये इस तरीके से होता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अभी दूसरा है कीटोन, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सो CH3C, CH3, C2H5, C double bond O, then CH2, COOH, ओके, ये है इस तरीके से। सो ये प्रायोरिटी में तो यही जाएगा, यू नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ओइक एसिड। सो द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे नाम है, नंबरिंग करते हैं। नो ये भी 4, 5th एंड 6, CH2H5 है ना, सो यहाँ पे 4, 5th इस तरीके से जाएगा। सो इट विल कम लाइक दिस। सो फर्स्ट 4 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, सो 4 डाई मिथाइल पहले तो ये हो गया। थर्ड नंबर के ऊपर कीटोन ग्रुप है, सो इट विल बी 3 कीटो, ओके, इट विल बी 3 कीटो। देन टोटल 6 कार्बन, सो हेक्सेन एंड ओइक एसिड, सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, सो ओइक एसिड 1 ओइक एसिड। सो व्हाट इट विल बिकम हियर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एम से पहले के आता है, सो 3 कीटो 4 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड, okay, so this is the way you can calculate, you can do फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स और प्रीफिक्स यूज़ होता है, वो देख लो, ठीक है। तो इस तरह एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैं सारे नहीं करा रही हूँ, मैं जितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो मैं करा देती हूँ आपको। ये वाला एक है, देख सकते हो, CH2O CH ये पे है, और ये इधर CH2 C डबल बॉन्ड O Br, दिस इज गिवन, ओके। अगर ये यहाँ पे दिया हुआ है, सो इसका अगर हम देखें एग्जाम्पल, अगर देखें तो अभी देखो क्या है, पहले ये दिया हुआ है पहले तो, ओके ना, फिर यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ये क्या है पहले तो COBr है। सो देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप का पर्टिकुलर नेमिंग दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो टेबल आपको प्रिपेयर करना है। ये ये आपको दिया हुआ है COCl, विच मीन्स दैट यू हैव टू टेक ऑयल हेलाइड। अगर क्लोराइड है सो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन है सो ऑयल ब्रोमाइड इट विल बिकम, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये सबसे पहले यही फंक्शनल ग्रुप आता है, इससे यहाँ पे ये, ठीक है, COCl। सो ये यहाँ पे ऑयल ब्रोमाइड हुआ। नंबरिंग बोलती हूँ मैं, बताती हूँ, पर ये पहले ये आपको पता होना चाहिए, ऑयल ब्रोमाइड COBr, ठीक है, ऑयल ब्रोमाइड ये होता है, ओके ना। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यही एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये दूसरा भी ये यहाँ पे, पहले ये, सो दिस वन इज कम फर्स्ट, सो द 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे ये 4 कार्बन, और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है,
ओके। सो यहाँ पे इस ये जो ओइक एसिड है ना, टोटल यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। सो तो ब्यूटो रहेगा, ब्यूटेन ये रहेगा। नाउ ब्यूटेन में जो ये ओ ऐसे जुड़ा है, सो दिस इज ऑक्सी, ये ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सी। और इसे, इसका भी आपको बताती हूँ फंक्शनल ग्रुप के टेक्स्ट बुक में। वेट मिनट, ये पूरा टेबल दिया है ना, जिसमें आप ये कर सकते हो, OCS3 ऐसे, एपॉक्सी। सो ऑक्सी लगाना है आपको, OL ऐसे, और ऐसे रिंग में हो तो भी उसका ऑक्सी जाता है, ठीक है। सो इपॉक्सी ये जाता है, इसका नाम लिखा जाता है, ये 3 बॉन्ड है, इपॉक्सी बोलते हैं इसको, ओके। सो ये इपॉक्सी, और ये ब्यूटेन के ऊपर है, और ये 3rd और 4th को जुड़ता है ऑक्सीजन, इसीलिए 3,4 इपॉक्सी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 3,4 इपॉक्सी, क्योंकि 3rd और 4th कार्बन के ऊपर ऑक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 3,4 इपॉक्सी। देखो इतने हार्ड तो नहीं आएंगे, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ, है तो ठीक है। तो अभी नाउ विल अरेंज ऑल ऑफ दिस। सो सबसे पहले तो यही आएगा क्योंकि ई है, सो व्हाट नेम विल बिकम 3,4 इपॉक्सी, ब्यूटेन, और 1 ऑयल ब्रोमाइड, bromide it will become. Okay, I hope you understand this. थोड़ा सा रिंग स्ट्रक्चर के नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, और अगर लाइन दी होती है, बॉन्ड लाइन दी होती है तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो वो देख लेते हैं एक दो। देखो इस तरीके से सपोज ऐसी एक लाइन है, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और बीच में ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ओके। तो पहले आपको जैसे ही बताया था कि ये होता है कार्बन, हर जगह कार्बन होता है, जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप ना दिया हो तब हर जगह कार्बन होता है, ठीक है। सो पहले ये कार्बन जो, उसको खोल देते हैं पहले तो कार्बन ये यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली CH2 आएगा, और ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है ना, ये कार्बन के साथ दूसरा मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 ये वाला, ठीक है। अभी ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, तो ये कार्बन के ऊपर H हाइड्रोजन रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये CH2, फिर ये आएगा CH2, फिर ये आएगा, सॉरी ये वाला भी, तो ये CH2, फिर ये कार्बन आएगा C, ठीक है। फिर उसके साथ ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सो डबल बॉन्ड से CH2, और ये सिंगल, तो ये हो गया यहाँ पे CH3। सो ये खोल दिया। नाउ आफ्टर द you will open it, then you will get the idea that what exactly the name will be. So इस तरीके का लाइन स्ट्रक्चर होता है, तो आपको ऐसे खोल देना है उसको, और then you can find out the name. फर्स्ट कार्बन ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, सो ये हो गया 2 and 6, सो 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा 1,6 डाई इन, दिस इज द नेम इट विल बी, ओके। सो इस तरीके से ये बॉन्ड लाइन होती है, ओके। अगर कोई बॉन्ड लाइन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कैसे किया जाता है, सपोज कि आपको एक यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे करके, ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, फिर उसको ऐसे करके यहाँ पे OH दिया है, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसे करके दिया है, ओके। सो ये जब इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप होता है तो यहाँ पे कार्बन नहीं होता, ये एक वाले कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, तो उसको खोलते हैं कैसे, चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, सो डेफिनेटली इट इज CH3, दिस इज CH2, दिस कार्बन हैव अ डबल बॉन्ड, ओके। सो हियर डबल बॉन्ड मैं ऐसे ही बता देती हूँ C, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है CH, और फिर ये CH3, ठीक है, और ये वापस C, ऊपर से ऊपर इसका CH3 हो गया, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड,
फिर ये वाला कार्बन CH आएगा यहाँ पे। देन ये कार्बन के साथ OH जुड़ा इधर और ये CH3, सो यहाँ पे H आएगा लाइक दिस। ठीक है, सो अभी ये वाली जो है लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और ये ब्रांच। ठीक है, और ये अल्कोहल है, सो ऑल जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले तो हेप्टा, हेप्टेन, और यहाँ पे ऑल, 1 ऑल। ठीक है, चलो हेप्ट 1 ऑल, अल्कोहल का ऑल। ठीक है, ये हो गया। नाउ थर्ड नंबर के ऊपर और फोर्थ नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, सो 3 4 डाई मिथाइल, ये मिल गया। फिर फिफ्थ नंबर के ऊपर CH2 CH3 दिया हुआ है, तो विच मीन्स इथाइल। अभी डबल बॉन्ड कौन से ऊपर के है? सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर और फिफ्थ कार्बन के ऊपर, सो 2 5 डाई इन। गॉट इट? सो अभी इसको करेंगे अरेंज। व्हाट इज द नेम? 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल, 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल, ये जाएगा। उसके बाद हेप्ट 2 5 डाई इन